بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پیجامے جیسا اور سبز قمیض پہ ایسا سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گورے گزار بازو نمایاں تھے، اور نازک کلائیوں میں بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھورے بال سیدھے شانوں پہ بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، اور چوڑیاں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان کی سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع تھا اور ایک اس کی تیاری رہتی تھی۔ اف اوف، اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا۔ کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، وہ حیران سے پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں۔ تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا سمارٹ بندہ بنا پلک جھپکے جیسے محبوب سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں۔ وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے، اور وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کے کان پکڑا اور دوسرے سے جھمکے کو ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا، اور وہ جو پچھلے لمحے فضول میں کھوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیرنے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتے نیچے آیا۔ اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی تم؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غزیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی، اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھیں۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا، اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پہ بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑی صوفے پر دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا اور خاصا شرمایا ہوا بھی تھا۔ اس میں ایسا کچھ نہ تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا اور سامیہ تو مسکرا مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہی اسلام آباد کی ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اور اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی، اور سمدھنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتی ہوئی ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پہ کسی بات پہ ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کرا رہی تھیں۔ حسن کے بازو کو تھامے بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھیں، اور وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اسی پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوغلا شخص کوئی نہ لگا۔
حسن اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بددل اور غمزدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہ ہوا کہ وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گروانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی اور اپنی وہ ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ مانی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے، صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنے ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے، وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر تو سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن پہ ہی لگاتا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے، اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پہ سائن کروانے ہیں، مفتی صاحب سے کروا لاؤ۔ یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے، باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا۔ محمل اپنی کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کو بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی اور نہ ہی وہ اور فواز زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کے پسند کی چیزیں منگواتا، اسے اس کے سٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرأت پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس بھی نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا۔ اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کے سپ لیتے سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے والوں کے لان میں پھٹک رہی تھیں۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پہ سفید شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پہ ایک بڑا سا قرآن پاک اور کچھ سپارے رکھے تھے، سارے ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے کسی نہا خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کے سامنے آیا تھا، سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں، موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا کہ شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر 4 صفحے اکٹھے الٹ دیے۔ چند لمحے کے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو توجہ نہ پا کر 2-3 صفحے پھر سے اکٹھے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانت میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا شاید رب کو، وہ جان نہ پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پہ ڈھیر لگ گیا تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ہو کر ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجیے، دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پہ جھکی ساری کاروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ چند منٹ کے بعد ملازم برآمدہ عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔
वो जैसे शॉक से सारा मंजर देख रही थी। दिल में नामालूम सा अफसोस उतर आया, एक अजीब सा एहसास नदामत, अजीब सी बेकली। वो उस एहसास का कोई नाम ना दे सकी तो चाय का कप उठाए नीचे उतर आई और फिर दोपहर तक वो इस वाक़ये को भूल भाल चुकी थी। स्टॉप पे मुकर्ररा वक्त पे फवाद की मर्सिडीज आती दिखाई दी तो खुश और पुरशौक से बेंच से उठी। कैसी हो? वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठी तो मुस्कुराकर जैसे बेताबी से पूछ रहा था। ठीक हूँ फवाद भाई, आप कैसे हैं? वो सादगी से कहकर बैग कंधे से उतारकर पीछे रखने लगी। अपने अंदाज से उसने कभी फवाद पे जाहिर नहीं किया था कि वो उसके जज्बात तक रसाई हासिल कर चुकी है। वो हमेशा खुद को उसके एहसानों बोझ तले ममनून जाहिर करती थी। आज का दिन बहुत स्पेशल है महमल, वो कार सड़क पे डालकर बहुत जोश से बता रहा था। आज मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जी कहिए। उह, अभी नहीं, अभी सरप्राइज नहीं खोल सकता। अच्छा ऐसा क्या है फुआद भाई? तुम खुद देख लेना। खैर, अभी तो हम शॉपिंग पे चल रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लेना है। कपड़े? मगर अभी तो कोई फंक्शन करीब नहीं है। है ना, आज है, आज कुछ खास है। अच्छा, कौन कौन होगा उधर? मैं और तुम। उसने मुबहिम सा मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। ऑफिस में? वो कुछ कुछ समझ रही थी मगर अनजान बनी रही। मैरियट में आज हम साथ डिनर करेंगे। मैरियट में? लम्हे भर को तो सांस लेना भूल गई थी। मैरियट में तो डिनर तो क्या, उसने तो कभी अंदर से मैरियट की शक्ल भी ना देखी थी। लेकिन फिर डिनर का अल्फाज उसे जरा सा परेशान कर गया। मैं इतनी रात को क्या कहकर बाहर रहूंगी फवाद भाई? नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे और आज रात मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊंगा सबके सामने। लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारे जवाब के बाद। जवाब? किस चीज का जवाब? कुछ पूछना है तुमसे। उसका दिल जोर से धड़का। क्या वो समझ रही थी वो सच होने जा रहा था? मगर क्या? ये तो वो मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा। कुछ कपड़े लेते हैं तुम्हारे लिए। वो कार पार्क करके सीट बेल्ट हटा रहा था। मगर ये ठीक तो है, उसने मामूली सा एहतजाज किया। ओहो, आज तुम्हें स्पेशल तैयार होना पड़ेगा। उसके अंदाज में नरम सी धौंस थी। वो हंसकर अच्छा कहती नीचे उतर आई। वो उसे एक खास महंगे बुटीक पर ले आया। कपड़ों से ज्यादा कपड़ों की कीमतें होश उड़ा देने वाली थी। वो खुद ही आगे बढ़ बढ़कर एक एक कपड़े इधर उधर पलट कर देखने लगा। फिर रुक कर पूछा, तुम्हें साड़ियां पसंद है महमल? साड़ियां? वो हैरान हुई। जी, मगर वो तो बहुत फॉर्मल, कोई अगर मगर नहीं। ये साड़ी देखो कैसी है। उसने एक स्याह साड़ी आगे की। स्याह शेफून की साड़ी पे सिल्वर मुकेश बिखरी थी। वो इतनी खूबसूरत झिलमिलाती साड़ी थी कि नजरें खैरा कर देती। अच्छी है मगर बहुत कीमती है। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है, ये पैक कर दे। फिर मैचिंग जूते और एक नाजुक सा सिल्वर नगों वाला आर्टिफिशियल कंगन लेते खासा वक्त लग गया। दोपहर ढलने लगी थी जब वो ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शॉप में महमल का दिल जोर से धड़का था। क्या फुआद उसके लिए इतना कीमती लेने जा रहा था? क्या वो उसके लिए इतनी खास थी? डायमंड रिंग्स दिखाइए। वो कुर्सी खींचकर टांग पे टांग रखे बैठा कदरे तहक्कुम और रौब से बोला तो महमल तो सांस लेना ही भूल गई। खुदा इस तरह से छप्पड़ फाड़ कर भी मेहरबान होता है, उसे तो आज ही पता चला था। मोअम्मर बारिश सुनार साहब ने फौरन कुछ स्याह केस सामने किए और जैसे जैसे वो स्याह केस खोलते जा रहे थे, जगर जगर करती हीरे की अंगूठियां उसकी आंखें चुंधिया रही थीं। सर सॉलिटेयर में दिखा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो बिल्कुल चुप सी बैठी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्ट किस तरह करे। फवाद को रिंग पसंद ही नहीं आ रही थी। वो उससे राय भी नहीं ले रहा था, बस इधर उधर अंगूठियां रद्द करता जा रहा था। यूं करो, पहले तुम तैयार हो जाओ, रिंग बाद में ले लेंगे। शॉप से निकलते हुए उसने घड़ी देखी। मेरी 6 से 7 एक मीटिंग है, बहुत जरूरी है, मिस नहीं कर सकता। 6 से 7 तुम्हें मेरे साथ ऑफिस में बैठना पड़ेगा। फिर 7 बजे हम इकट्ठे मैरियट के लिए निकलेंगे। सो तुम अभी तैयार हो जाओ। किधर? वो वाकई हैरान हुई थी। पार्लर में, और किधर? मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी। तुम सिर्फ अंदर जाना, वो तुम्हें तैयार कर देंगी। वो उसे करीबी पार्लर ले आया था। फिर वो वैसे ही हुआ जैसा उसने कहा था। महज 1 घंटे बाद जब वो पार्लर के कद आदम आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी तो उसे खुद पे रश्क आया था। स्याह मुकेश की झिलमिलाती साड़ी में इसका दराज कद स्याह सिल्वर पेंसिल हिल के बाइस मजीद नुमाया हो गया था। लंबी सुराही सी गर्दन
और ऊंचे जोड़े के बायस बेहद पुरकशिश लग रही थी। जोड़े से चंद एक लटे घुंघरियाले बाल के इसकी गर्दन और रुखसारों पे झूल रही थी। लाइट लिपस्टिक के साथ ब्लैक स्मोकी आईज और स्याह ब्लाउज की छोटी आस्तीनों से झलकते इसके बेहद गोरे सुनहरे बाजू, जरा सी मेहनत से वो इतनी हसीन लग रही थी कि खुद को देख देख कर इसका दिल नहीं भर रहा था। वो बाहर आई तो जो इसके इंतजार में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था बेइख्तियार सीधा हुआ और फिर मोहब्बत सा देखता रह गया। वो साड़ी का पल्लू उंगली से लपेटते एहतियात से सैलून के बाहर की सीढ़ियां उतर रही थी। इतनी हसीन हो तुम महमल, मुझे इतने बरस पता ही नहीं चला। वो जैसे मुतासफ हुआ था। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। थैंक यू। चले। उसने आसमान को देखा जहां शाम ढलने को थी। हाँ, मेरी मीटिंग शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। चलो। एक भरपूर मुस्कुराती निगाह उस पर डालकर वो कार का लॉक खोलने ही लगा कि उसका सेल फोन बज उठा। इस वक्त कौन? कहते कहते उसने स्क्रीन को देखा और फिर चौंक कर फौरन कान से लगाया। जी मलिक साहब, खैरियत? जी क्या मतलब? इसने लब खींचकर कुछ देर को दूसरी तरफ से सुना। मगर आपने इनको बताया था कि आपको मैंने ही भेजा है। मगर क्यों? उन्होंने साइन क्यों नहीं किए? वो एकदम से फवाद के चेहरे पर उभरती गुस्से की लहर दिखाई दी। आप सीनियर ऑफिसर हैं या जूनियर? इन्हें इससे क्या गरज? आपको पता है मलिक साहब, अगर उन्होंने फाइल साइन ना की तो सुबह तक हमारी फैक्ट्री डूब जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। उसने रुक कर कुछ सुना और एकदम जैसे बिदका। क्या मतलब? मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ इतनी दूर? मेरी मीटिंग है सिद्दीक साहब के साथ 6 से 7। मैं अभी एएसपी साहब से कैसे मिलने आ सकता हूँ? क्या बकवास है? उसने झल्लाकर फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? वो बहुत घबरा कर करीब आई। मालूम नहीं अब क्या होगा। वो परेशानी से कोई दूसरा नंबर प्रेस करने लगा। लम्हे भर को तो जैसे भूल ही गया था कि वो उसके साथ खड़ी है। जी राव साहब, मैंने मलिक इलियास को भेजा था आपकी तरफ, मगर राव साहब इतनी भी क्या बेइतबारी? उसने रुक कर दूसरी तरफ से सुना, फिर जैसे जब्त करते हुए बेबसी से बोला, आपके एएसपी का दिमाग तो ठीक है, इसके बाप का जागीरदार होगा वो अपने गांव का। हम आपके मजारे नहीं हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि उनकी एक कॉल पे चला ही आए। नहीं, नहीं। वो लम्हे भर के रुका। ओके, फिर मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ, कहकर वो अब कोई और नंबर मिलाने लगा था। एएसपी हुमायूं दाऊद। जाने क्या मसला है इस शख्स का। महमिल बद्दिल से इसके साथ गाड़ी के बाहर खड़ी थी। न जाने क्या हुआ था, दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। खैरियत है फुआद भाई? खैरियत ही नहीं है। एएसपी का बच्चा जान को आ गया है। कहता है कंपनी के मालिकों को भेजो तो फाइल अप्रूव होगी। मैं मुलाजमों से बात नहीं करता। अब किसको भेजूं उधर? वो भी इस वक्त बुला रहा है। उसके घर पहुंचने में आगा जान या हसन को 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, और अगर ना पहुंचे तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट डूब जाएगा। वो झुंझलाकर बार बार किसी को फोन पर मिलाता बहुत बेबस सा लग रहा था। अब यही हल है कि मैं अभी उसके पास चला जाऊं और वापस आकर सिद्दीक साहब से मीटिंग कर लूं। और डिनर कैंसिल? इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। करना पड़ेगा महमिल। इसने हाथ रोककर महमिल का तारीफ पड़ता चेहरा देखा। आई एम सॉरी, मैं यूं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर मेरी मजबूरी है। वो मुलाजमों से बात नहीं करेगा, घर के बंदे को ही जानना पड़ेगा। मैं भी मुलाजिम हूँ फुआद भाई। एक ख्याल सा उसके जहन में उभरा। क्या मतलब? वो जैसे चौंका। अगर मैं आपके 2 कामों में से कोई एक काम कर दूं तो हम तो डिनर पे जा सकते हैं ना? वो हिचकिचा कर बोली, कहीं वो बुरा ना मान जाए। अरे, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? तुम भी तो कंपनी के ओनर्स में से हो। तुम भी ये तो फाइल साइन करवा सकती हो। बल्कि यूं करते हैं कि तुम ड्राइवर के साथ फाइल लेकर चली जाओ, जब तक मैं सिद्दीकी साहब से निमट लेता हूँ, और फिर ड्राइवर तुम्हें होटल ले आएगा। ठीक? उसने मिनटों में सारा प्लान तरतीब दे दिया था। वो गहरी सांस भरकर रह गई। ठीक है, फिर मैं चेंज कर लूं? नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। इस तरह तो तुम वाकई कोई पुरएतमाद एग्जीक्यूटिव लग रही हो। ये सारी बिजनेस वुमेन फॉर्मली ऐसे ही ड्रेसअप होती हैं। मैं ड्राइवर को कॉल कर लूं? वो मुतमईन था, मगर महमल को कदरे अजीब सा लग रहा था। वो इतनी कीमती और झिलमिलाती साड़ी में किसी फंक्शन के लिए तैयार लग रही थी, किसी ऑफिशियल मामले के लिए मौजू नहीं थी। लेकिन अगर फवाद कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। ये ख्याल कि वो डिनर पे जा रहे थे उसे फिर एक्साइट कर गया।
सारा रास्ता वो पिछली सीट पे टेक लगाए आंखें मूंदे उस हीरे की अंगूठी के मुतालिक सोचती आई थी, जो फवाद ने यकीनन ले ली होगी। और जब वो ताई अम्मा के सामने खड़ा होकर महमल से शादी की बात करेगा, तब मानो घर में तूफान ही आ जाएगा। मगर अच्छा है, एक ऐसा तूफान इन फिरौनों को लरजाने के लिए आना ही चाहिए। वो पुरसुकून, मुतमईन और पुरएतमाद थी। गाड़ी तवील ड्राइव वे अबूर करके पोर्च में रुकी तो एक सताइशी निगाह खूबसूरत से लॉन पे डालती नीचे उतरी। मेन डोर पे एक सूटेड बूटेड अधेड़ उम्र शख्स जैसे मुंतजर खड़ा था। एएसपी हुमायूं दाऊद, उसने जहन में अंदाजा लगाया और फाइल मजबूती से पकड़े एतमाद से चलती उनके करीब आई। मैं आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। जी मैडम महमल इब्राहिम, आइए, एएसपी साहब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। इसने दरवाजा खोलकर रास्ता दिया। वो लम्हे भर को हिचकिचाई, फिर खुद को डपटते हुए अंदर कदम रखा। रोशनियों में घिरा वो बेहद नफीस और कीमती सामान से आरास्ता घर अंदर से इतना खूबसूरत था कि खुद को संजीदा रखने की कोशिश करने के बावजूद इसकी निगाहें भटक भटक कर इतराफ का जायजा ले रही थीं। एएसपी साहब किधर हैं? वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो उसके आगे तेज तेज चलते हुए लाउंज में ले आया। सर, ये पहुंच गई हैं। उसने लाउंज में कदम रखा तो सामने बैठे शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो टांग पे टांग रखे सोफे पे बैठा था। हैंडसम मगर मगरूर नकूश वाला चेहरा, जेल से बाल पीछे किए, ब्लैक कोट में मलबूस जिसके अंदर सफेद शर्ट के दो बटन ऊपर से खुले थे। एक हाथ में ऑरेंज जूस भरा वाइन ग्लास पकड़े वो बगौर उसे अंदर आते देख रहा था। एक लम्हे को तो महमल के कदम डगमगाए। उसका पाला ज्यादातर घर के लड़कों से ही पड़ा था। फवाद और हसन खुशशक्ल थे, कुछ दौलत की चमक दमक भी उसे स्टाइलिश लगते थे। बाकी इसके चचाओं में कोई भी इतनी मुतासर कुन शख्सियत का मालिक न था। सोफे पे बैठा वो मगरूर सा दिखने वाला शख्स था, हैंडसम, बेहद हैंडसम। इतना वजीह मर्द उसने पहली मर्तबा देखा था। वो ना चाहते हुए भी मरऊब हो गई। वो खामोशी से उसे बगौर जांचती निगाहों से उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो आकर सीधी सामने वाली सोफे पे बैठी और फाइल सामने मेज पर रख दी। अब उसका एतमाद किसी हद तक बहाल होने लगा। ये फाइल अप्रूव करानी थी एएसपी साहब। वो टांग पे टांग रखे इसके मुकाबिल बैठी, खासे एतमाद से बोली तो जरा सा मुस्कुराया, फिर सामने हाथ बांधे खड़े सूटेड बूटेड शख्स को देखा। इनको आगा फवाद करीम ने ही भेजा है राव साहब, मुस्कुराकर कहते हुए उसने जूस का ग्लास लबों से लगाया। महमिल ने चौंक कर राव को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया। कुछ था इन दोनों की मानीखेज मुस्कुराहट के दौरान इसके जहन में खतरे का अलार्म बजा। तो आप फाइल को अप्रूव कराने आई हैं? वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था। महमिल को उलझन होने लगी। जी, आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की फाइल है। और आपकी अपनी फाइल वो कहाँ है? उसने ग्लास साइड पे रखा और कदरे झुक कर हाथ बढ़ाकर फाइल उठाई। मेरी मेरी कौन सी फाइल? कुछ था जो उसे कहीं गलत लग रहा था, कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा था। आप जाएं राव साहब। उसने फाइल के सफ़े पलटाकर एक सरसरी निगाह डाली और फिर फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। महमल लेने के लिए उठी, मगर बहुत तेजी से राव साहब ने आगे बढ़कर फाइल थामी और जाकर आगा फवाद के ड्राइवर को कहें कि फाइल अप्रूव्ड है, सुबह इनको रसीद मिल जाएगी। बेहतर है सर। राव साहब फाइल लेकर पलटे तो वो उठ खड़ी हुई। मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। वो दोनों एकदम चौंके थे और फिर रुक कर एक दूसरे को देखा। हुमायूं ने इशारा किया तो राव साहब सर हिलाकर बाहर निकल गए। आप बैठिए मैडम, ड्राइवर दे आएगा। एकदम इसके कानों में खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी थी। उसे लगा वो गलत वक्त पे गलत जगह और गलत लोगों के दरमियान आ गई है। उसे वहां नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं चलती हूँ। वो पलटने ही लगी थी कि वो तेजी से उठा और जोर से इसका बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसके लबों से चीख निकली, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है वैसा ही करो। इसके बाजू को अपनी आहिनी गिरफ्त में दबोचे वो गुर्राया था। लम्हे भर को तो जमीन वो आसमान महमल की निगाहों के सामने घूमने लगे। छोड़े मुझे। वो संभल ही न पाई थी कि हुमायूं दाऊद ने उसके दोनों बाजुओं को थामे पकड़ा, उसे झटका देकर बिल्कुल अपने सामने किया। ज्यादा चालाकी दिखाई तो अपने पैरों पे घर नहीं जाओगी। मुझे छोड़े, मुझे घर जाना है। महमल ने इसको परे धकेलना चाहा, उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर जाना है, घर ही जाना था
तो इतने बनाव सिंगार क्यों किए थे? उसने होले से इसकी ठोड़ी को उंगली से ऊपर किया और दूसरे हाथ से कोहनी इतनी मजबूती से जकड़ रखी थी कि वो हिल ना पाई, और घबरा कर उसने चेहरा पीछे किया। मैं फंक्शन पे जा रही थी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप फवाद भाई से मेरी बात कराएं, मैं उन्हें बताऊं। भाई? वो चौंका। आगा फौद तुम्हारा भाई है? जी, वो मेरे भाई हैं, आपने बेशक इनसे पूछ लें, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फवाद भाई को खुद आना था, मगर उनकी मीटिंग थी, वो एकदम रोने लगी थी। आप प्लीज मुझे घर जाने दें, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ। झूठ बोल रही हैं। राव पीछे आ खड़ा हुआ था। इसी को इधर आना था। चंद हफ्ते पहले तो डील हुई थी सर, और इसी के नाम से हुई थी। कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई। आगा ने कहा था, ये हमारी डिमांड पे पूरी उतरती है। राव का लहजा सपाट था। महमल इब्राहिम नाम है ना तुम्हारा? तुम आगा की बहन कैसे हो सकती हो? वो 3 करोड़ के नफा के पीछे अपनी बहन को एक रात के लिए नहीं बेच सकता। उसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। उसे बहुत ज्यादा जोर का चक्कर आया था। वो गिरने ही लगी थी कि हुमायूं ने उसकी दूसरी कहनी पकड़कर उसे खड़ा किया। अब सीधी तरह बताओ, तुम हमें बेवकूफ बना रही हो या आगा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है? तुम महमल इब्राहिम हो और वो फवाद करीम। वो तुम्हारा सगा भाई है, इतने अरसे से लड़कियां फ्राहम कर रहा है, पहले तो कभी अपनी बहन का सौदा नहीं किया। नहीं नहीं, उसने बेयकीनी से नफी में सर हिलाया। आप झूठ बोल रहे हैं। फवाद भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी इनसे बात कराएं, आप खुद ही सुन लेना। वो मेरा वेट कर रहे हैं, हमें फंक्शन पे जाना था। हर आम इंसान की तरह महमिल को भी झूठ की हल्की फुल्की आदत तो थी, और उसने पुरानी आदत का कमाल था कि खुद ब खुद इसके लबों से डिनर की जगह फंक्शन निकला था। कहीं लाशऊर में उसे एहसास था कि अगर वो अपने और फवाद के खास डिनर का कहती तो वो उसे बुरी लड़की समझते। राव साहब, आगा फवाद को फोन मिलाएं। राइट सर। राव मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा और स्पीकर ऑन रखें, उसने कहकर एक गहरी नजर महमिल पे डाली, जो बेकरार और हरासा सी राव के हाथों में पकड़े फोन को देख रही थी। जी राव साहब, एकदम कमरे में फवाद की आवाज गूंजी। माल पहुंच गया? पहुंच तो गया, मगर पुर्जे बहुत आवाज दे रहे हैं, आप बात कर लें। उसने फोन आगे बढ़ाकर महमिल के कान से लगाया। हेलो फवाद भाई, हेलो। रो पड़ी वो। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज इनको बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। वो तुम्हें डायमंड रिंग चाहिए या नहीं चाहिए ना? तो जैसे एएसपी साहब कहते हैं करती चली जाओ। फवाद भाई, वो हलक के बल चिल्लाई थी, ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे, वो जो करते हैं करने दो। सिर्फ एक ही रात की तो बात है, अब ज्यादा बकबक मत करना, सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। सातों आसमान इसके सर पर टूटे थे। वो साकत सी खड़ी थी। सिर्फ एक रात की तो बात है, सिर्फ एक रात की तो बात है। इसकी इस आवाज उसके सहन पे हथौड़े बरसा रही थी। बस एक डायमंड रिंग का लारा दिया उसने तुम्हें, और तुम तो कहती थी कि वो तुम्हारा भाई है। फोन इसके कान से हटाकर बंद करते हुए हुमायूं ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो इसी तरह पत्थर का बेजान बुत बनी खड़ी रही। उसका जहन, दिल, कान, आंखें सब बंद हो चुके थे। राव साहब, पता कराएं, ये वाकई फवाद करीम की बहन है या नहीं? उसकी बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हम बाद में खुद मालूम कर लेंगे। शम्स, उसने जोर से आवाज दी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। साकत खड़े वजूद में रही सही जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे। वो 2 गनमैन दौड़ते हुए अंदर आए। शम्स, इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो, और ध्यान करना कि भागने ना पाए। और इससे पहले कि वो अपना फिक्रा मुकम्मल करता, महमल चकरा कर गिरी, और गिरकर इसके दोनों बाजुओं से उसने थाम ना लिया होता तो वो नीचे गिर पड़ती। महमल, महमल, वो उसका चेहरा थपथपा रहा था। उसकी आंखें बंद होती गईं और जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रान।